तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई अब शुरू हो रही है। और इसी बीच आप पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष को जिस भी मुद्दे पर अपनी बात रखनी है, तीखे सवाल करे, धारदार सवाल करे, लेकिन शांतिमय तरीके से सुनने की क्षमता भी रखे। डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा and Sri Raju Satav, 10 of our former members, namely Professor N.M. Kamble, Sri Bhagavati Singh, Sri Belihari Babu, Sri Ajit Singh, Sri Matang Sinha, Sri Jitendra Bhai Labshankar Bhatt, Dr. Ramendra Kumar Yadav, Ravi, Sri Jagannath Prasad Pahadia, Srimati Shanti Pahadia, and Sri Dilip Kumar, or popular cine personality, originally known as Yusuf Sarwar Khan, and Sri Milka Singh, the legendary track and field sprinter, have passed away. Dr. Raghunath Patra passed away on the 9th May 2021 at the age of 78 years. Born in March 1943 at Sasan Padia in Puri district of Orissa, in a family of sculptors, Dr. Raghunath Mahapatra had his education at Padia in Puri town of Odisha. An architect and sculptor, Dr. Mahapatra was initiated into sculpting at the tender age of 8 years by his grandfather, a sculptor, who worked with the royal family of Puri for upkeep of Sri Jagannatha temple. Though he did not get any formal training in sculpture, his craftsmanship was such that he was revered as an encyclopedia in the field of sculpture. The uniqueness about his craft was that he never used machines for sculpting, but chose a chisel and hammer only to create several masterpieces. A genius in the world of sculpture, Dr. Mahapatra served as a senior instructor and superintendent in the Handicraft Training and Designing Center, Government of Odisha. He was the recipient of several prestigious awards and in recognition of like Padma Shri in the year 1976, Padma Bhushan in the year 2001, Padma Vibhushan in the year 2013. Dr. Raghunath Mahapatra was a nominated member of this House from July 2018 till his sad demise. In the passing of Dr. Raghunath Mahapatra, the country had lost a legendary craftsman and a sculptor for excellence. Sri Raju Satav passed away on 16th May 2021 at the age of 46 years, very sad. Born in September 1974 in Pune, Maharashtra, Sri Raju Satav was educated at Ferguson College and ILS Law College, Pune. An agriculturist, Sri Satav served as the chairman, Agriculture and Animal Husbandry Milk Development Committee, Jilla Parishad Hingoli from 2007 to 2009. He started his legislative career as a member of the Maharashtra Legislative Assembly from 2009 to 2014 and went on to serve as a member of 16th Lok Sabha from May 2014 to May 2019. Sri Raju Satav became member of this House on the 3rd April 2020 from the state of Maharashtra. He actively participated in the debates held in this House and emphatically put forth his views of his party and his own on those issues. तो आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और पहला दिन है। दोनों ही तस्वीरों को आप देख रहे हैं। इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी,
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको। अच्छी परंपरा, निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।
श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधिनिस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को तो स्पीकर ओम बिरला की शांति से अपील के बाद अब परिचय करवाया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से विपक्ष ने जमकर शोर किया, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। तो नवनियुक्त सांसदों को जो मंत्री बनाया गया है उनका परिचय होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि और उनका परिचय होने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार शोर किया गया और शांति बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारी तादाद में इस बार महिला सांसदों को मंत्री बनाया गया है, ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाया गया है, किसान के बेटे इस बार मंत्री बने हैं, तो उनका परिचय होना जरूरी है। लेकिन सदन की कार्रवाई में जानबूझकर शोर किया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नाराजगी व्यक्त हुई। श्री सुग्रीव सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उड़ीसा के फूलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री सुग्रीव सिंह का निधन
57 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 2021 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री रामेश्वर पाटीदार 6ठी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन। और हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से शुरुआत हुई मॉनसून सत्र का पहला दिन और जो हंगामा, जो शोर सुनाई दिया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये सोची समझी रणनीति है कि हम बोलने नहीं देंगे, जमकर शोर करेंगे। पीएम मोदी ने बार बार अपील भी की, लेकिन उसके बाद काफी देर बाद मामला शांत हुआ। प्रियंका, कोई मामला अभी शांत नहीं हुआ है। आप देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद दिवंगत हो गए, उनकी ओबिचुरी जब पढ़ी जा रही थी तब मामला शांत हुआ। लेकिन ये पहली बार हुआ होगा, ये लोकसभा या संसद के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि किसी भी प्रधानमंत्री को उनके मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया, नहीं होने दिया गया। इतना शोर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए कैबिनेट के नए मंत्रियों का परिचय लोकसभा में कराना चाह रहे थे। ये परंपरा भी है और जरूरी भी है, ये संवैधानिक मजबूरी भी है। और प्रधानमंत्री जब परिचय करा रहे थे, आपने देखा किस तरह से वहाँ हंगामा हुआ। विपक्षी दल वेल में चले गए थे और तरह तरह के नारे लगा रहे थे और मजबूरी में लोकसभा आसन को प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि वो अपने जो मंत्रियों की सूची है वो सभा पटल पर रखे। जबकि होता यह है प्रियंका कि प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का नाम लेते हैं और उनसे परिचय कराते हैं, हर मंत्री का जो नए मंत्री होते हैं। लेकिन रविंद्र, इससे वो समझा परंपरा जा सकता नहीं हुआ है पहली कि बार। आगे भी अगर किसी विषय पर शुरुआत होगी सरकार की तरफ से चर्चा की, तो उस पर किस तरह से घेरने का प्रयास किया जाएगा। रविंद्र, आपको यहीं पर अभी हम रोक रहे हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.